Assalamualaikum dear students. Welcome in the course of linear algebra. As we have discussed in previously classes, we have covered the almost many topic of the course. So in this class we will discuss about the homogeneous linear system. Okay. So before going to discuss about the detail of the further explanation regarding the linear homogeneous linear system, I will tell you a system of linear equation is said to be homogeneous if it can be written in the form Ax equal to 0. As we have already studied that A is any our matrix, augmented matrix, and X is any variable which is equal to 0. 0 is here, 0 is any 0 vector. Here A is m by n. The order of matrix is m by n. M represents the number of rows and n represents the number of columns matrix, and 0 is the 0 vector. So if any form of the system which gives Ax equal to 0, we can say that this is the homogeneous linear equation system. Homogeneous linear system. So before going to further detailed analysis of homogeneous linear system, let's discuss about the trivial and non-trivial solutions. So the zero solution is called the trivial solution. This zero solution is called the trivial solution for a given Ax equal to 0. The important question is that whether there exists a non-trivial solution. There might be possible that if there exists any non-zero solution, instead of 0 there must be any number. Okay, so that is a non-zero vector x that satisfies x equal to 0. If any non-zero number occurs here, so is that satisfied the linear system of homogeneous linear system? So this will be analyzed in further. The homogeneous equation Ax equal to 0 has a non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variables. We have already studied that matrix system or linear system consists of two types of variables: basic variables and free variables. Basic variables are those variables whose solution set has constant values, some values, and the free variables occurs in that system where there exist infinite many solutions. If there exist some many solutions and in the form of in the system of linear equations, more than one parallel lines are intercepting each other, then we can say that there exist infinite solutions. And if there exists basic variables, we know that this is the unique solution. Okay. Once again I am going to repeat this in Urdu. कोई भी हमारे पास लीनियर सिस्टम है उसको हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहेंगे जब हमारे पास Ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं. ये एक हमारे पास क्या है, कोई भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है. ये x क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, x का वेरिएबल है. ठीक है, जो जिन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए 0 के बराबर, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है. ठीक है. अच्छा, A इज द मैट्रिक्स. सपोज कर लें A का जो ऑर्डर है m by n है, और 0 क्या है हमारे पास, 0 इज अ वेक्टर, एनी वेक्टर, 0 वेक्टर. ठीक है. ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है. ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो 0 सॉल्यूशन है इसको आप क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, जो के मैट्रिक्स के हवाले से होंगे. ठीक है. और मेन जो बात है कि क्या जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर करता है अ नॉन जीरो वेक्टर x दैट इज सेटिस्फाइड, और क्या वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, इसको मज़ीद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे थ्रू सम प्रॉब्लम्स. ठीक है. आपने एक चीज़ नोट करनी है कि द होमोजीनियस इक्वेशन Ax इक्वल टू 0, उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस होगा अगर उस इक्वेशन में एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल है. अगर वहाँ पे एक भी फ्री वेरिएबल है तो वहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. मज़ीद हम इसको प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जो भी हमारे पास लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे
उसमें अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल्स आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने पढ़ा है 2 टाइप्स के वेरिएबल्स, ठीक है, एक बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे फ्री वेरिएबल्स होते हैं। बेसिक वेरिएबल्स हमारी उन लीनियर सिस्टम में आते हैं जहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ लीनियर सिस्टम जो लाइन्स हैं ग्राफिकली, ठीक है, वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी वहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है वहाँ पे एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में ये पॉसिबल आती है कि हम जब उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ट्रिवियल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हवाले से उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, तो उसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें कुछ फ्री वेरिएबल्स आते हैं। फ्री वेरिएबल्स आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो इसका मतलब फ्री वेरिएबल आने का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम जो है इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, फर्दर हम एक प्रॉब्लम करके समझते हैं इसको मज़ीद। हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम मिला हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। देखिए इसके x = 0 है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि इसको डिटरमिन कीजिएगा इसका क्या इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम जो स्टेप फॉलो करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मज़ीद जो है इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसको भी 0 बनाना होता है, इसको भी 0 बनाना होता है। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2
प्लस R1, इस रो को इस रो से ऐड करवाएं, ठीक है। उसके बाद जो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है, R3 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसको जो है सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम आ जाएगा जो कि हम मज़ीद लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैसा सिस्टम बनेगा, 3 5 माइनस 4 0, ठीक है। -3 + 3 0, 2 -5 -3, 4 -4, ये 0 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद 0 - 0 0 बचा, ठीक है। उसके बाद -2 3 6 + 6, -6 + 6 0, -10 + 1 -9, -8 ++8 -8 0, उसके बाद 0 को 0, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, इसको हमने 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, R3 है, रो 3 में हमने 3 टाइम्स -3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करवाना है, यानी R2 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद ऐड कराएंगे। तो हमारे पास कैसा सिस्टम बनेगा, ये कुछ बनेगा इस तरह, 3 5 -4 0 0 -3 0 0, उसके बाद 0 -3 को इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -3 -3 माइनस +9 +9 -9 0 बचा हमारे पास यहाँ पे 0, उसके बाद ये 0 ये 0। अच्छा, अब देखें ये चीज़ देखिएगा, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो हम क्या समझते हैं कि ये इसमें जो है क्या है, फ्री वेरिएबल है, यानी ये जो लास्ट आपके पास x3 वाली जो कंडीशन बन रही है, इसमें x3 क्या है आपके पास, यहाँ पे कुछ 0 बन रहा है, ठीक है। मज़ीद हम इसको अगर इसकी रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म निकालना चाहें तो वो कुछ इस तरह बनेगी। अच्छा, इसको मज़ीद हम जो है डिवाइड करेंगे रिड्यूस बनाने के लिए, 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करा दो R1 से, ⅓ को मल्टीप्लाई करा दो R1 से, ठीक है। 1 बचेगा यहाँ पे जो है, इसको फिर जो है R2 को क्या करा दो, R2 को आप जो है -1/3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये आपके पास कुछ 1 1 बचेगा। उसके बाद जो है इसमें मज़ीद जो है आपने कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, एडिशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जिस तरह आपने इसको रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म बनने के बाद आपके पास से कुछ कंडीशन बन जाती है, वो कुछ इस तरह बन जाती है। तो कंक्लूजन है कि आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म बनेगी, रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी। अच्छा, ठीक है। रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म कुछ इस तरह बननी चाहिए आपके पास, ये वाली ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है इक्वेशन अगर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या बनती है इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, देखें, x1 -4/3 x3, ये 0 x2 है, = 0 बन गया है, ठीक है। उसके बाद x2 आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। x3 आपका क्या है, 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो x3 फ्री वेरिएबल है हम आपके पास, ठीक है। तो
ये चेक कीजिएगा। x3 आपके पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। अगर फ्री वेरिएबल आ जाए तो आप क्या कहते हैं इसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने डिटरमाइन कर लिया है कि इसमें इसमें क्या है, इसमें जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको मज़ीद अगर हम इसकी फॉर्म लिखना चाहें, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, तो वो अच्छा यहाँ तक आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, इसको मज़ीद हम फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं, यानी हम जो है मज़ीद इसको मज़ीद फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें से। ठीक है, तो इसकी स्नैपशॉट्स ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। देखें, ये सेम सिस्टम है। ठीक है, इसको अगर मैं इसी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये क्या लिखा है हमने, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इसके वेरिएबल्स कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम में लिखना चाहें, ठीक है, इस वाले सिस्टम को इस सिस्टम में भी हम लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म सिस्टम। ठीक है, तो इसको अगर हम इस वाले सिस्टम में लिखना चाहें तो इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे हम, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो सिस्टम है हमारे पास x1 ये 4/3 x3 इक्वल टू, यानी x1 की वैल्यू इतने टाइम्स होगी x3 के। ठीक है, x2 हमारे पास क्या है, 0 है। x3 की वैल्यू अगर 0, x2 अगर 0 है, ठीक है, तो इक्वेशंस के हिसाब से x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x2 के बराबर होता है। यानी अगर x2 की कुछ वैल्यू है तो उसको x3 को x2 ले लें। ठीक है, आपके फ्री वेरिएबल्स जो हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, मज़ीद इसको हम एक दूसरे प्रॉब्लम करके समझते हैं।
ध्यान देना। यहाँ पे एक सिंगल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। ये सबसे जो है सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है इसको। ये जो टी है एक यानी इक्वेशन है 10x1 - 3x2 + 2x3 = 0, यानी एक इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। इसको सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके हमने जो है डिस्क्राइब करने हैं ऑल होमोजीनियस सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी इसकी जो है सोल्यूशन सेट हमने डिफाइन करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं कितने सोल्यूशन सेट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें इसके सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हम देखें 10x1 की वैल्यू क्या बनेगी, 10x1 = 3x2 - 2x3, बल्कि इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा +2x3, ठीक है, क्योंकि ये इसमें शिफ्ट आ रहा है, इसकी साइन चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, x2 और x3 की वैल्यू हम वो पुट करेंगे जो यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी ये हम खुद से जो है, यानी जस्ट लाइक एक फ्री वेरिएबल्स है, ठीक है। x2 और x3 क्या है, यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल्स हैं। फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू यानी एक की इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी कुछ वैल्यू देना चाहें खुद से, तो जो सेटिस्फाई हो, तो उस सिलसिले में इसको क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल्स। एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे x2 और x3 क्या है आपके पास,
ठीक है, ये फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है किसी में भी जो है फ्री वेरिएबल्स, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में फ्री वेरिएबल्स आ जाए, उसको आप क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना चाहें, वो किस तरह लिख सकते हैं आप, देखें सिंपल वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज निकालेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ प्लस, यानी इसके साथ ये भी है, तो x1 की वैल्यू हम इस तरीके से भी वेक्टर फॉर्म में हम सीख चुके हैं क्लास में। ठीक है, मज़ीद 1 0 ये भी हमारे पास इस तरह एक वेक्टर फॉर्म के थ्रू जाके हम उसकी इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस x3 जो है हमारे पास 1/5 0 1, x3 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 और 1। ठीक है, अच्छा, इसको मज़ीद अगर हम इस सिस्टम को मज़ीद जो है समझना चाहें, यानी इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें एक जनरल फॉर्म की तरफ, ठीक है, तो सपोज कर लें इस x2 को आप नाम दे दें इसको v कर लें। ठीक है, सपोज कर, ठीक है, तो इसकी जनरलाइज फॉर्म किस तरह लिखेंगे आप पैरामीट्रिक वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे, अच्छा, ये जो क्या है आपके पास u और v क्या है आपके पास, ये हैं वेक्टर्स, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, और जो है आपके पास t और s क्या है, ये कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसको जनरल टर्म में हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म को अगर डिफाइन करना चाहे इसको, तो हम क्या नाम देंगे, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपसे कहा गया है कि आपको जो है सिंपली क्या करना है, एक सिंपल लीनियर सिस्टम दिया गया हुआ है 10x1 - 3x2 + 2x3 = 0। ठीक है, आपने क्या किया है, 10x1 = यानी इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या किया है आपने, 10x1 इक्वलिटी की साइन यहाँ पे लेकर आए, तो आपके पास कुछ सिस्टम ऐसा बचा। ठीक है, उसके बाद x1 को डिवाइड किया आपने 1/10 से। ठीक है, तो आपके पास कुछ सिस्टम बचा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 को डिवाइड किया है आपने इससे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो है 1/5 यहाँ पे बच गया है। ठीक है,
x2 और x3 आपके पास क्या आ गए, फ्री वेरिएबल्स, यानी x2 और x3 की वैल्यू देंगे तभी आपके पास x1 की वैल्यू आएगी। तो x2 और x3 की वैल्यू कहाँ से देंगे, आपने खुद से देनी है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, ठीक है। यानी यहाँ पे x1 आना चाहिए तो कुछ ऐसी वैल्यू देनी होगी x2 और x1 की 1 के हवाले से, तो जो सेटिस्फाई कर सके x1 को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पता चला कि x2 और x3 इसमें जो है फ्री वेरिएबल्स हैं। फ्री वेरिएबल्स आ गए तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। इसको आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे, वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, x1 x2 x3, ठीक है, इसके साथ इसका वेरिएबल मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर बनाते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेक्टर बनाते हैं, देखें इसमें कितने जो है वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। तो इस वजह से हमने वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। x2 के वर्टिकल कॉलम जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे, ठीक है। x3 के वर्टिकल वैल्यू से होंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे, ठीक है। और हमारे पास पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, x = 2u + sv। u और v क्या है आपके पास, ये है आपके वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये u हो गया आपका, ये v हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें कहा गया है कि इसकी जो है आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने हैं इस सिस्टम के, ठीक है, और उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम किस तरह बनाते हैं, वो कुछ इस तरह बनाते हैं। वन 2 -3 0 2 1 -3 0 -1 1 0 0, ठीक है। इसको मजीद इसको 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे हम, तो कुछ ऐसा बनाते हैं हम, R2 - 2R1, ठीक है, एंड R3
प्लस R1। R2 को हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 को इसको 0 बनाने के लिए, R3 प्लस R1। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, कुछ 1 2 -3 0 2 × 2 2 -2 + 2 0 -4 + 1 -3 -6 -3 -6 -3 -9 सॉरी माइनस प्लस +6 -3 बचेंगे +3, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद R3 -1 + 1 0 1 + 2 3 3, ठीक है। उसके बाद 0 -3 ठीक है। कुछ इस तरह बन रहा है हमारे पास सिस्टम। अच्छा, इसके बाद हम इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट प्राइवेट पोजीशन क्या बनी, ये बनी। इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बन गया, ये 0 बन गए। इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली R3 + R2 इसको इसके साथ ऐड करा दो, ये 0 बन जाएगा। वो किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा 1 2 -3 0 0 -3 3 0 0 -3 + 3 0 -3 + 3 0 ये 0। कुछ इस तरह फॉर्म बनी आपकी, ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा यहाँ पे क्या आ गया, पूरी रो 0 आ गई। मतलब क्या हुआ, फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसको मज़ीद हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसके लिए जो है आपका क्या एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म में लिखेंगे, जिस फॉर्म का नाम क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म। वो किस तरह लिखेंगे, अच्छा, अगर इसकी आप इक्वेशन बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगी, x1 + 2x2 - 3x2 3 = 0, ठीक है। उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाना चाहें -3x2 + 3x3 = 0 0 = 0। x3 कुछ है ही नहीं, x3 हमारे पास 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें x2, ठीक है, ये -3x2 = -3x3, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। x2 = x3, यानी x2 की वैल्यू होगी जो वो ही x3 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपली एक चीज़ जो है वो ख्याल रखना है उसका, तो जो x2 होगा इसमें वो x3 होगा, ठीक है। तो मज़ीद हम इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है लिखना चाहेंगे। अच्छा, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है हम लिखेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म लिखने के लिए हमने क्या करना होता है, सिंपली वेक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स हम बना रहे हैं अभी, तो वो कुछ किस तरह बनाएंगे हम बताते हैं। अच्छा, ये रब किया जा रहा है, देखें। अगर x1 की वैल्यू निकालना चाहें, अब x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू भी आ गई, x1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, वो कुछ इस तरह बनेगी। देखें, सपोज कर लें x1 की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पे भी 1 रखें, ठीक है। तो आपके पास कुछ जो वैल्यू आनी चाहिए, तो
ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -2x2 -3x3, ठीक है। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, सपोज कर लें, ये यहाँ भी 1 पुट कर लें, यहाँ भी 1 पुट कर लें, तो आपके पास क्या बचेगा, -5x, ठीक है, यानी 5x2, x2 की या x3 की वैल्यू, ठीक है, या x3 की वैल्यू जो भी आप रखना चाहें, ठीक है, तो वो आप रख सकते हैं x3 टाइम्स, सॉरी, यानी x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू तीनों सेम बन रही है, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम मज़ीद इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे वो कुछ इस तरह लिखेंगे, एक बार तो आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने ओवरऑल ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला हुआ है, इसको हमने आगमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद हमने इसकी इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन बनने के बाद कुछ ऐसे सिस्टम आ गया, हमने वैल्यूज़ निकाल लिए, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, अब सबसे पहले देखें x3 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, ये x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x2 जो मज़ीद हम इक्वेट करेंगे तो ये x2 इक्वल टू x3 बन रहा है हमारे पास, यानी जो x2 की वैल्यू होगी वो x3 की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, x1 की वैल्यू निकाल दी है, x1 की वैल्यू को इक्वेट कर दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ -5x3 बचा है, इसको हम मज़ीद पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। हमें कहा गया है यहाँ पे कि हमने जो है फाइंड करना है
ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसको फाइंड करना है। सिंपली क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसके, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में रखना होता है। वो कुछ इस तरह रखेंगे। इन दोनों को जीरो बनाना है, तो कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, R2 प्लस R1 और R3 माइनस 2R1। हमारे पास कुछ क्या बनेगा, 3 5 माइनस 4 7, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 5 माइनस 2 3, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3, उसके बाद माइनस 4 प्लस 4 0 7, माइनस 1 प्लस 7, तो ये बचा 6 बचा आपके पास। 6 बचने के बाद यहाँ पे बचेगी आपके पास माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, माइनस प्लस 8 माइनस 8 0, माइनस 14 प्लस माइनस 14 प्लस 10, अच्छा माइनस 14 प्लस माइनस 14 माइनस 4, माइनस 14 माइनस 4 हमारे पास बचते हैं कुछ माइनस 18, ठीक है। हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है, अगर सोल्यूशन इसका मज़ीद फाइंड करना चाहें, ठीक है, इसको डिटेल में अगर हम मज़ीद जो है सॉल्व करना चाहें, तो हमारे पास जो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म कुछ बनेगी, ठीक है। जो हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म अगर लेना चाहें, तो इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हम किस तरह लिखेंगे, 1 0 माइनस 4/3 माइनस 1, और जो है 0 1 0 2 0 0 0 0, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, x1 प्लस 1 माइनस 4/3 x2 इक्वल टू -1, और ये क्या है, x2 इक्वल टू 2, ये 0 इक्वल टू 0। फ्री वेरिएबल्स है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू, इसकी बात करना चाहे तो अगर हम x1 इक्वल टू -1 प्लस 4/3 x2, ठीक है, और x2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट इज 2, ठीक है, और फ्री वेरिएबल, अच्छा। इसकी अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना चाहें तो वो कुछ किस तरह लिखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये इस तरह आएंगे,
अच्छा, ये देखिएगा, ये जो है पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी गई है x1 x2 x3 -1 + 4/3 x3 सेम रखा है x2, ठीक है। उसके बाद 2 x3, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको मजीद हमने अलग अलग लिखने की कोशिश की है। -1 2 0 0 क्या है x3 जो कि हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे x3 को फाइंड करने के x3 को मजीद खोल के लिखा हुआ है 4/301, ठीक है। ये क्या है, आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिकली देख लीजिएगा ये किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लें ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपकी एक लाइन जा रही है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ सपोज, ये कुछ इस तरह लाइन जा रही है आपकी, ठीक है। इसको सपोज कर लें ये हमारे पास x = 0 यानी होमोजीनियस इक्वेशन है, 0, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सपोज कर लें ये हमारे पास ये कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं x = p के बराबर है, यानी कोई भी ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जाएगा, ठीक है। ये होता है कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। ये p पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर जो होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसकी कुछ जो है सॉल्यूशन इस तरह जाएगा, सॉरी ये p + tv क्या है, ये जो है आपकी इंक्रीमेंट है, ठीक है। एक यानी रिलेशनशिप है बिटवीन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो किसी इस पॉइंट पे आ रहा है, और होमोजीनियस का जो है वो +tv फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसके मजीद हम जो है मजीद ऑनलाइन क्लास जब हम लेंगे उसमें जो है मजीद जो क्यूरीज आपकी होंगी उसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।